بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے عوام تک سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذخیرہ اندوزی منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی کے قیام کا مقصد شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ پنجاب کے عوام کو ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اقدام، پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی کے قیام کا مقصد شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار چیک کرے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی نگرانی کرے گی، صوبے بھر میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گی، جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا۔ اتھارٹی اشیاء کے معیار اور ان کی تیاری میں حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے اقدامات کرے گی۔ صوبے میں قانون کی عملداری یقینی بنانا بھی پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ سے مل کر اقدامات کرے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوامی فلاح کے منصوبے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مخصوص کریں۔ پری مانسون بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ صوبے بھر میں عید الاضحیٰ اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے مجموعی پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عید پر عمدہ کارکردگی پر ڈپٹی کمشنرز اور ان کی ٹیموں کو سراہا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری، وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ انچارج سی ایم کمپلینٹ سیل شعیب مرزا اور معاون خصوصی ذیشان ملک کو بھی شاباش دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسی جوش و جذبے سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ قائد میاں محمد نواز شریف نے خود وزٹ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا اور سراہا۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ایسیز ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مخصوص کریں۔ ہاسپٹلز اور اسکولوں کے باقاعدگی سے وزٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ محرم الحرام، ممکنہ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ سرکاری ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹینوں کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت، پنجاب حکومت کا تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ غیر قانونی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف پنجاب حکومت ان ایکشن، سرکاری ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹینوں کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی شکایات پر تحقیقات کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں تعمیر و مرمت کے ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹینز کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ہونے والے تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں سے متعلق رپورٹ مانگ لی۔ ٹھیکہ کس کو دیا، طریقہ کار کیا تھا، کتنے افراد، کمپنیوں نے حصہ لیا، مداخلت کتنی تھی، سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا ٹھیکہ کس کو اور کیسے دیا، سب معاملات کی تحقیقات کا حکم۔ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری خزانے کی لوٹ میں ملوث مافیاز کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ گرفتاری پر ڈاکٹرز اور نرسوں کی ہڑتال، تڑپتے مریضوں کا کسی کو نہیں خیال۔ احتجاج کے باعث 5 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہو گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج سینکڑوں مریضوں کے آپریشن بھی التوا کا شکار۔ سرکاری ہسپتالوں کے او پی ڈیز اور انڈور بند ہونے سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مریض خوار، لواحقین پریشان، انتہائی اہم آپریشنز بھی متاثر۔ حکومت اور ہڑتالیوں کے درمیان معاملات جوں کے توں۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی ہڑتال 7ویں روز میں داخل۔ ہڑتال کے دنوں میں اب تک او پی ڈیز آنے والے 5 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہوئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج سینکڑوں مریضوں کے آپریشن بھی نہ ہو سکے۔ ایک ٹیچنگ ہسپتال میں روزانہ لگ بھگ 5000 مریض رپورٹ ہوتے ہیں۔ جنرل ہسپتال، میو ہسپتال اور جناح ہسپتال کے آؤٹ ڈورز مکمل طور پر بند۔ سروسز اور سر گنگارام ہسپتال کے او پی ڈیز اور انڈور بھی نہ کھل سکے۔ وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے شیخ زاید ہسپتال کا عملہ بھی ہڑتال پر۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ رات بھر ہمارا مریض درد سے تڑپتا رہا، کس کو اپنا درد دکھائیں۔ میں بڑی مشکل نال آئی ہوں، اتوں آندے تک بند ہے۔ ہوں پھر میں 200-300 روپیہ کرایہ لا کے پھر میں واپس جاؤں، پھر میں پرسوں بھجی آواں۔ کہ غریباں تے کوئی ساس نہیں گا کہ انہوں نے صرف اپنی تنخواہ نہ لیے۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ ان کو نا یہ ہڑتال ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ ہر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے مریض ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ضلالت ہے، ہر جگہ۔ میرے پاس یہ ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹیسٹ نہیں ہو رہے میرے، نہ باہر نہ اندر۔ ان کا ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا جو ادھر سے فری ہونا تھا، باہر 15,000 روپے مانگ رہے ہیں اس کے۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے پرنسپلز میں سینئر اساتذہ کو ہتھ کڑیاں لگوائیں۔ سی ایم کے معافی مانگنے تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز سستے نہ رہے، آٹا، چینی اور گھی پرچون بازاروں سے مہنگے فروخت کیے جانے لگے ہیں۔ صارفین مایوس ہونے سے یوٹیلیٹی سٹورز سے ویران ہو گئے۔
सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमती पॉलिसियों से महंगे स्टोर्स बन गए। आटा, चीनी और घी समेत मुतअद्दिद अशिया ओपन मार्केट से कई गुना महंगी फरोख्त। आटा परचून बाजार में 10 किलो वाला थैला 850 रुपए का, यूटिलिटी स्टोर्स पर 1500 रुपए में दस्तयाब। चीनी ओपन मार्केट में 145 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा सोम या कराची ब्रांड का घी 455 रुपए फी किलो। परचून बाजारों में यही घी 425 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरियों का कहना था, हुकूमत इस इदारे को तबाह करने के लिए ऐसी पॉलिसियां बना रही है। कभी यहाँ रश नहीं टूटता था, अब लोग आते नहीं। बाजार से चीज़ अगर एक 10 रुपए की मिलती है, यहाँ 20 रुपए की 25 रुपए की मिलती है। अब बंदा कहाँ जाए, गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। ये कीमतों के हालात हैं कि बाहर जो हैं चीज़ें वो मतलब कि रेट उनका सस्ता है, यहाँ पे कोई मुनासिब रेट नहीं है, ज़्यादा रेट है। बहुत रश ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰੀ नहीं सी आंदी ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ तो ਹੁਣ कोई वेख लो कोई बंदा ही नहीं है अंदर के सौदा लैन वाला हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को ही सस्ती अशिया की सहूलत दी गई है, ताहम मुतवस्सित तबका बेयारो मददगार है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा शौक। बिजली बिलों में माहाना 200 से 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। भारी बिलों से परेशान आवाम को 440 वाट का एक और झटका। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 तक फिक्स चार्जेस भी आयद। कमर्शियल सार्फिन के चार्जेस में 300%, सनती सार्फिन के लिए 355% इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर माहाना 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। 5 किलो वाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। तमाम 5 किलो वाट या इससे ज्यादा लोड वाले बिजली के कमर्शियल सार्फिन 2000 रुपए अदा करेंगे। TOU मीटरिंग के तहत 25 किलो वाट तक इस्तेमाल करने वाले सनती सार्फिन जो B1 कैटेगरी में आते हैं वो 1000 रुपए अदा करेंगे। B3 और 4 कैटेगरी के सनती सार्फिन 2000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई, लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ आज मुल्क के एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, जमात इस्लामी मुल्क भर में लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज करेगी। मौसम की शिद्दत को हुकूमत की नाअहली और तर्ज हुक्मरानी मजीद बढ़ा देती है। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और ऐसे हालात में हो रही है कि जब पाकिस्तान की कौम 2800 अरब रुपए वो अदा कर रहे हैं कि जिसकी बिजली बन भी नहीं रही और हम खरीद भी नहीं रहे और हमारे बिलों में वो पैसे लगकर आते हैं। जब इतनी एक्सेस बिजली और उसके मुआहदे मौजूद हों और फिर भी लोड शेडिंग हो रही हो तो नाअहली, बदउनवानी, करप्शन, इसके अलावा और उसको आप क्या जुबान देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, जब कोई बिल पास करना हो तो मुस्लिम लीग नून और MQM की नोरा कुश्ती शुरू हो जाती है। बजट में टैक्सेस के 13,000 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जिससे मिडिल क्लास तबका पिसेगा। इस बजट में जो टैक्स के अहदाफ रखे गए हैं 13,000 अरब रुपए के, वो वैसे भी जो है वो दुरुस्त चीज़ नहीं है। जब आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड एक चीज़ मौजूद है तो आप जितना चाहें आप टैक्स लगा दें, लेकिन वो टैक्स हासिल करने के लिए आपने क्या किया? क्या टैक्स नेट बढ़ाने का कोई काम किया? नहीं, टैक्स नेट नहीं बढ़ाया गया, उसके लिए इक़दामात सामने नहीं आ रहे। बल्कि सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो तनख्वाहदार तबका है, वो मिडिल क्लास लोग हैं जो काम करते हैं। और वो सिर्फ सरकारी सेक्टर में तनख्वाहदार लोग नहीं होते,
बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था, अवाम ने शदीद गर्मी में ईद गुजारी, 14 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहा। इतवार को पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब इतनी तेज़ी से वेलफेयर के काम कर रही हैं कि हर रोज़ मीडिया को बताना पड़ता है। फलाह और बहबूद के कामों में मरीम नवाज छुट्टी भी नहीं करती। इस ईद पर सफाई सुथराई मिसाली थी। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब इतनी तेज़ी से वेलफेयर के काम कर रही हैं कि हर रोज़ मीडिया को बताना पड़ता है। मरियम नवाज फलाह व बहबूद के कामों में छुट्टी भी नहीं करती। इस दफ़ा ईद के दिनों में सफाई सुथराई मिसाली थी। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुसाफिरों को जायद किराए वापस किए गए। पंजाब का 1708 अरब रुपए का कर्जा भी 1600 अरब रुपए से कम हो गया। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है और वज़ीर आला बनने से पहले, मरीम नवाज साहिबा के वज़ीर आज़म बनने से पहले 1708 अरब रुपए का मकरूज़ था। पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज़ था और अब पंजाब का कर्जा जो है वो 1685 अरब जो है वो रह गया है। इंशाअल्लाह ताला इसमें भी बहुत तेज़ी से आप कमी देखेंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि जहां लोगों की 10-11 साल से हुकूमत चल रही है, वो हमारे 100 दिनों के कामों का मवाजना नहीं कर सकते। 34 लाख रुपए से ज़ायद वसूल करदा किराए मुसाफिरों को वापस लौटाए गए। जहाँ पर लोगों की 10-10 साल से हुकूमत चल रही है, अब 11वां साल चल रहा है, शायद वो अभी तक वो 100 दिनों के हमारे बराबर काम नहीं कर पा रहे। फालतू किराया चार्ज नहीं करने देना। हमारी खुशकिस्मती हुई कि बीच में पेट्रोल का रेट भी कम हो गया, जिसकी वजह से हमने किराए भी कम कर दिए। तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो 34 लाख से ज़्यादा रकम है जो कि पहली दफ़ा पंजाब के अंदर मुसाफिरों को वापस की गई, जिनको उनसे पैसे लिए गए थे। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था, 1954 के बाद इस साल गंदम की मद में कर्जा सिफर हो गया, जो वज़ीर आला पंजाब की तारीखी कामयाबी है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू की। हनीफ अब्बासी पर सिर्फ एक एफी ट्रेन केस हुआ तो वो सीधा चलना शुरू हो गए। ताज कंपनी चौक सगिया रोड पर पीपल्स पार्टी शोबा ट्रांसपोर्ट के सूबाई दफ्तर का इफ्तिताह। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हनीफ अब्बासी की हमारे बारे में मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू की बात की समझ नहीं आई। हनीफ अब्बासी पर सिर्फ एक एफी ड्रेन केस दर्ज हुआ तो वो सीधा चलना शुरू हो गए। हसन मुर्तज़ा ने कहा, हमारे तमाम लीडर तिबी मौत नहीं मरे बल्कि शहीद हुए। हनीफ अब्बासी के साथ जब ऐसा होगा तो तब पूछेंगे मीठा हप हप क्या होता है। अगर मीठा हप हप करना होता तो जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी न चढ़ते। आइंदा हफ्ते पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी अवामी मुफादात की सियासत कर रही थी या जाती। मीठे मीठे का है, अब्बासी साहब को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ना, उन पे सिर्फ एक एफिड्रीन का केस बना और बिल्कुल सीधे होके चलते हैं। हम पीपल्स पार्टी की एक कुर्बानियों की दास्तान है। हमने अगर मीठा मीठा खाना होता तो भुट्टो साहब ही शहीद ना होते। हमारा तो क़यादत का खानदान ही जो है वो कोई तबई मौत मरा ही नहीं है, सारे शहीद हुए हैं। तकरीब में मरकजी सदर शोबा ट्रांसपोर्ट तनवीर जट, राना जवाद, फयाज भट्टी, एहसन रिजवी, हसन अशरफ भट्टी और ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली के इजलास में एक बार फिर हुकूमती अरकान की बानी PTI पर शदीद तनकीद, उन्हें मुनशियात फरोश करार दे दिया। अपोजिशन रुकन ने PTI वालों को पुलिस से बचने के लिए अपने साथ ख्वाजा सरार रखने की तजवीज़ दे दी। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में पंजाब असम्बली का इजलास में हज के दौरान वफात पाने वाले हुजाज कराम के लिए फातह ख्वानी की गई। पंजाब असम्बली में उस वक्त शोर शराबा बरपा हुआ जब हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने कैदी नंबर 804 को मंशियात फरोश कहा। इसी दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान भी गुस्से में आ गए और कहा, बानी PTI को हमने जेल में नहीं भिजवाया। इजलास में बजट पर आम बहस के दौरान रुकन असम्बली राना औरंगजेब ने कहा कि गिरफ्तारियों से बचने के लिए PTI रहनुमा अपने साथ एक ख्वाजा सरार रखें। इजलास में चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने PTI रुकन शेर शाहिद जावेद को वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद से रोक दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास 24 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।